दिनांक 4 दिसंबर 2023 को गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज बोकारो में आयोजित विमर्श 2023 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल झारखंड के शैक्षणिक सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर ई बालगुरुसामी, विशेष अतिथि महामहिम राज्यपाल झारखंड के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर संजीव राय तथा माननीय कुलपति झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के डॉक्टर DK सिंह का आगमन हुआ। माननीय अतिथियों का स्वागत JGPS चास के स्कूल बैंड एवं कॉलेज के NSS के स्वयंसेवी छात्रों की टुकड़ी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, प्रार्थना गान तथा माननीय अतिथियों के स्वागत से हुआ। कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार ने स्वागत भाषण दिया। कुलपति डॉक्टर DK सिंह ने माननीय मुख्य अतिथि का परिचय दिया। विमर्श 2023 के विषय लाइफ एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड कीज टू सक्सेस पर मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर ई बालगुरुस्वामी ने रोजगार पर गुणों को आत्मसात करने पर शानदार भाषण दिया, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। डॉक्टर संजीव राय ने अपने भाषण में व्यक्तिगत प्रगति के गुण छात्रों के साथ साझा किए। संस्थान अध्यक्ष सरसेम सिंह ने अपने भाषण में कॉलेज की प्रगति को सराहा और उसका श्रेय डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार और उनकी टीम को दिया। संस्थान के सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने कॉलेज की भावी प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के समन्वय और संचालन प्रोफेसर महमूद आलम, प्रोफेसर अपूर्वा सिन्हा, प्रोफेसर श्वेता कुमारी ने किया। मंच का संचालन स्नेहा रत्न, आफरीन व साहिबा अकरम ने किया। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, प्रोफेसर सुमित पांडे, प्रोफेसर पल्लवी प्रसाद, प्रोफेसर आशीष कुमार एवं गुरमेल सिंह के अलावा अन्य लोगों ने योगदान दिया। आइए सुनते हैं इसी मौके पर अतिथियों ने क्या कुछ कहा। Higher technical education Jharkhand. My assessment is I have been traveling last 3 or 4 months and visited most of the universities, and they are doing fairly good, absolutely good. But there is a lot of scope for improvement and enhancement in both in terms of number and quality both. In number ऐसा बना higher education है ना, higher education में Jharkhand is enrollment higher education is very low compared to national average. Now what do you call as GER, no? Only 17%. National average is 27%. Highest is 54% in Tamil Nadu. So now we have to do lot more in terms of improving GER. GER means admission into higher education. We have to do lot more work. That both private, government, all of them together do lot of work. So admission क्या होता है? We have to improve lot of, increase lot of colleges, universities, and also admission into existing colleges. No, government should have a policy for encouraging girls and boys from poor background, rural background to join. No. Economically background people cannot join, even though college is there nearby. They can't join because of the lack of financial support. So government should come to certain policies to how to encourage poor people to join higher education, and also increase large number of colleges in rural area. Rural Jharkhand we have a colleges so that you can increase input. Sir, nowadays we are observing that the Governor House is very much concerned about the educational scenario of Jharkhand state. What is there is Absolutely yes, because the governor is so much concerned about the quality because he comes from a state where higher education is very good. So naturally you like to make Jharkhand education as good as Tamil Nadu or southern states. So naturally that's why we requested me to come and help actually, no. So we are, myself and Sanjeev, Dr. Sanjeev Ray, both of them are there. Both of us are working for assessing model. So we are all traveling various universities, colleges, engineering, both arts and science. See what lacks, infrastructure, all that. So we can advise governor, and governor in time request the government to support. Ultimately, government support is important. Sir, one more question is there. Are you agree with the question that there is no sufficient educational institution for higher and technical education, particularly for engineering, management and MBBS, so that students are moving in another states like south and service center means what do you mean by? There is no any, I don't think that there is sufficient number of medical colleges and engineering colleges in okay. state. No, that's not really, no. See, you have to improve, you have to, government that they are not doing much more. No, but state government is trying to do. I see lot of model colleges started there, buildings are there, no faculty are there. Government is trying to do something.
But you need to improve engineering colleges, medical colleges, you know. I think every district should have one. Medical facilities are very bad, you know. Healthcare is very much needed in the rural part of state. And engineering colleges also have number, but still we can have scope for increasing. But the problem is, if you increase that, you have to create employment opportunities, you know. You have to get employment opportunity. I think it's a very much harassment for the medical students, because we are having only 6 government medical colleges and only 2 private. No, you have to increase. I'm telling you, you have medical healthcare is the most important. I tell you, human development index and indicator is there to measure health education of a state. Jharkhand is the bottom of the list of states of India. There are 34 states including Union Territory. Jharkhand and Bihar are the bottom. 33 Jharkhand and 34 is Bihar. Which shows human development index is very low. What are the human development index? Education, healthcare and per capita income. These are 3 goes into HDI. So all the 3 are bad. So healthcare we have to improve it. See, a society, any government, any nation can improve provided good healthcare and good education. Then infrastructure, agriculture all comes in. Basic need of any government, any state, any nation is education and healthcare. So both you have a lot of scope for improvement. So right now you are in Guru Gobind Singh Technical Campus. You visited the campus. What is your observation? So very, very good. I think for the first impression is very good infrastructure, very good management, a committed management and highly motivated faculty I could see there. And very disciplined students, you know. I could see the students at 1 o'clock, 1:30, just waiting and listening people talking, you know. Absolutely amazing that. I really appreciate the management for having excellent facilities and very good faculty, and also the highly motivated and disciplined students are there. I think they can, given opportunity, they can do wonderful. Thank you. Thank you. आप देखेंगे झारखंड जो है भारत का बहुत कम आपका यूनिवर्सिटी है जो एनईपी लागू किया है, और इस एनईपी में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मस्ट कर दिया है। ये क्रेडिट बेस्ड है। स्पोर्ट्स और आपका जो को करिकुलर एक्टिविटी वो भी मस्ट है, और ट्रेनिंग में सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी खुद कोलैबोरेट कर रही है। अभी 6 से हम लोगों ने कोलैबोरेट कर लिया है। अभी हमने टाटा के एमडी को भी लेटर लिखा है, वो भी समय बोले हैं अभी बाहर में है, आके देंगे। तो ये हम लोग क्वालिटी आपका बढ़ाने जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान सब लोगों को बनाना है, और प्लेसमेंट हमारी पूरा प्रायोरिटी है, प्लेसमेंट और स्टार्टअप। मैं और सर अभी जा रहे हैं हम लोग IIT चेन्नई, वहाँ स्टार्टअप के कल्चर को भी झारखंड में हमको प्रमोट करना है, क्योंकि बिकॉज द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज़ नॉट ओनली टू टेक द जॉब, टू क्रिएट द जॉब। हु विल क्रिएट जॉब फॉर अस? द बेस्ट स्टूडेंट। और जब तक टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, तो हम जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में ऐड नहीं करेंगे, सर्विसेज डेवलप नहीं करेंगे, तो हमारा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? हु विल प्रोवाइड जॉब टू अस? बट वी आर लिविंग इन ए एरा जहाँ इंडिया चेंज कर गया है और माइंडसेट इज चेंजिंग, तो उसमें हम लोग उसको पूरा प्रमोट कर रहे हैं। राजभवन राय साहब हैं, सर इज़ द एडवाइज़र। वी आर फॉर्चुनेट एनफ, बोथ पीपल हैव सो वास्ट एक्सपीरियंस। वो भी हमको हिट बैक कर रहे हैं, हम आपको हिट बैक कर रहे हैं पूरे कॉलेजेस को। एंड आने वाले दिन में आप देखेंगे इट विल चेंज। लोग स्कूलिंग सिस्टम में आप देखेंगे बहुत कम पेरेंट्स जो है बाहर भेजते हैं। हायर एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हैं, हम लोग भी चिंतित हैं कि GER को हमको बढ़ाना है, तो उसमें हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सफिशिएंट है, बिग इंडस्ट्रीज इज़ देयर इन द झारखंड, ठीक है। हमें केवल कोलैबोरेट करना है। अभी हम लोग जनवरी के लास्ट वीक में हम लोग प्लान भी कर रहे हैं, मेकिंग झारखंड वन ऑफ द ग्लोरियस स्टेट ऑफ द कंट्री थ्रू इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट समिट। वो हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री के लोग रहेंगे, एकेडमिया के लोग रहेंगे और गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो लोग भी रहेंगे। जो आपकी जो चिंता है उस पर हम लोग मंथन करेंगे। आप सारे लोग इनवाइटेड हैं। चैम्बर इंडस्ट्री के जो झारखंड इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो सारे के मेंबर लोग रहेंगे। ये हमारा पर्पस है, ठीक है। सर का पहला दिन से ही है कि वाई द पीपल आर गोइंग, वाई द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हम लोग इसका सर का जो विजिट का पर्पस है OSD साहब का यही है कि वेयर इज़ ए गैप, वेयर इज़ ए प्रॉब्लम, कि हम लोग बैठ के उसको हम लोग उसको दूर करें। ये हमारा पर्पस है।
और अभी आप देखेंगे साइट पर बताए भी होंगे, हम लोगों ने एक पैनल डिस्कशन भी कराया। हाफ डजन इंडस्ट्री से हमारी MOU हो गई है और हमारा मिशन है जुलाई तक जाते जाते करीब करीब 2 डजन इंडस्ट्री से कर हम लोग इनको देने जा रहे हैं। और इनको भी इंस्टीट्यूशन को भी हम लोगों ने कहा है कि आप भी अपने स्तर से कोलैबोरेट करें। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मैकेनिकल के बच्चे हैं तो यहाँ जितनी जो बड़ी बड़ी कार कंपनी है सबका शोरूम आप देखिएगा झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप क्यों नहीं आप शुरू से ही उसके साथ आप MOU साइन कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल में उनको भी आप बताइए एक मॉडल कि भाई आप जो वर्कर रखते हैं हमको ट्रेनिंग में लीजिएगा तो 3 महीने का कॉस्ट तो घटेगा आपका उतने लेबर को रखने में, और हमारा क्या होगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो जाएगी हमारे विद्यार्थी को। सेक्रेटरी साहब तो देखिए इंडस्ट्री सबसे जुटे हुए हैं तो ऐसे लोग हैं, खाली हम लोग को उस तार को जोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो हमारा ही हो जाएगा। सर, कॉलेज कैंपस में आज इस कार्यक्रम का जो ऑर्गेनाइज किया गया, इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या था? आज हमारे कॉलेज गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस 50 बोकारो में एक विमर्श 2023 का कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत के ग्रामीण कंप्यूटरीकरण के पिता प्रोफेसर बाला गुरुस्वामी साहब का आगमन हुआ। हमारे यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर DK सिंह सर और महामहिम साहब के OSD साहब डॉक्टर संजीव राय यहाँ आए और छात्रों को सबसे बड़ी लाइफ स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बताया। आपको जैसा ज्ञात होगा, पीछे हमारे कॉलेज में 35 कंपनियां आई थीं, जिसमें 7 कंपनियों ने, बाकी कंपनियों ने तो सिलेक्शन किया छात्रों के लिए, 7 कंपनियों ने एक भी छात्र का सिलेक्शन नहीं कर पाई। तो ये सब जो कमियां रही हैं कि क्यों बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी की कहाँ कमी है, तो आज हमें हमारे प्रोफेसर साहब जो भी हैं उन लोगों के माध्यम से छात्रों को मिलने इसकी जानकारी मिली। करीब 450 छात्र सुबह से इसकी राह देख रहे थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। और मैं निश्चित रूप से आश्वासन देता हूं माननीय कुलपति महोदय एवं महामहिम साहब के जो सलाहकार महोदय और OSD महोदय को कि निश्चित रूप से अब जो भी कंपनियां आएंगी उसमें छात्र जरूर इन बातों को समझते हुए सिलेक्शन होंगे और हम जो है बेरोजगारी और इन चीज़ों को दूर करने में एक अहम भूमिका इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में निभाएंगे।